Hello everyone. We are doing chapter 8, Human Health and Diseases. This is the part 3 of the chapter, class 12, Biology. In this video, we are going to cover two topics, AIDS and cancer. What is AIDS? Let us see the full form of AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome. I repeat it. The full form of AIDS is Acquired Immunodeficiency Syndrome. Let us see the important points about the disease. First point, it is the deficiency of immune system. What is the immune system? As you already know, this is the system which help us to fight with the disease germs. और अगर कोई डेफिशिएंसी इस सिस्टम में हो जाएगी तो हम डिजीज जर्म से फाइट नहीं कर पाएंगे. Point number 2, it is written syndrome. What do you mean by the term syndrome? Syndrome means a group of symptoms. There is no one particular symptom in the disease. You find many symptoms, many different symptoms can be seen in this disease. That's why the name given syndrome. Third, it is caused by a virus. The name of the virus is Human Immunodeficiency Virus, HIV. And fourth point is HIV is a retrovirus with RNA as a genome. So इसका genetic material RNA होता है और this is a retrovirus. We'll tell you what is retrovirus means. Point number 5, AIDS was first reported in America in 1981. And within 25 years, it killed over 25 million persons. It is a very dreadful disease. This is the virus, HIV, Human Immunodeficiency Virus. See the structure of the virus. In the center, there is an RNA, which is a genetic material. DNA is not the genetic material here, it is the RNA. And there is an enzyme called reverse transcriptase enzyme which is present in the virus. You can see the black dots forming, isko show kiya gaya hai, and there is a protein coating outside. This is the structure of HIV. It is a retrovirus with RNA as a genetic material. How the disease transmit? HIV does not spread by mere touch or physical contact. Very important. Only touch से या physical contact से ये disease एक दूसरे को transmit नहीं होती है. Okay? But it spreads only through body fluids. Very important. जब किसी भी दो persons का body fluid mix हो जाएगा, then the disease may transfer from sick person to the other person. How this happen? First, how the transmission takes place? First, by the sexual contact with the infected person. The disease germs can transfer from one person to another. Point number 2, transfusion of contaminated blood and blood products. If a patient is given a blood during blood transfusion and the blood is contaminated with HIV virus, so the virus can enter into the body of the patient and that patient may get HIV. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है. द ब्लड शुड बी HIV नेगेटिव बिफोर ट्रांसफ्यूजन टू द पेशेंट्स. थर्ड, बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स. अगर इंजेक्शन देते समय एक निडल ऐसे पर्सन को दे दिया है जिसको एड्स है और सेम निडल इज यूज्ड टू द फॉर द अदर पर्सन, तो दैट अदर पर्सन विल आल्सो गेट द वायरस. It also transmit from mother to the child through placenta. Very dangerous. Okay. One very important thing about this disease is there is a time lag from few months to 5 to 10 years between the infection and the appearance of the symptom.
अगर आज HIV वायरस एंटर किया है बॉडी के अंदर तो उसके सिम्टम दिखने में कुछ मंथ भी लग सकते हैं एंड 5 to 10 ईयर्स के बाद भी ये सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं. तो टाइम लैग बहुत ज़्यादा है, बहुत वेरिएबल है. Let us see the replication of the virus. How this retrovirus replicate in the body. First point, retrovirus which is having the viral RNA, purple color का RNA बनाया हुआ है with a viral protein coat. And when this retrovirus attack the cell, normal cell, point number 2, what will happen? Only the RNA part enter into the cell. Protein part बाहर रह जाएगा, only RNA will enter. Point number 3. Now this RNA, viral RNA will form viral DNA by the enzyme called reverse transcriptase. Fourth point. Fourth is the DNA, viral DNA. This is a viral DNA formed from viral RNA. And this DNA then enters into the nucleus, incorporates into the genome of the cell and take over the machinery. जैसे टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट कहीं पर जहाँ भी एंटर करते हैं तो सारी मशीनरी को अपने हाथों में ले लेते हैं, लाइक दिस. नाउ द सेल इज अनेबल टू डू एनीथिंग. जो अब डीएनए, वायरस का डीएनए है, जो इंस्ट्रक्शंस वो देगा वही सेल बनाएगा. पॉइंट नंबर 6. नाउ the cell starts making viral RNA, and this RNA which is formed at the point number 6 now will be enclosed by the protein and new retrovirus are formed. These new retroviruses, they come out from the cell and attack the other cells. This cell becomes the factory of the retrovirus. बहुत सारे रेट्रोवायरसेस बन रहे हैं, HIV वायरस बन रहे हैं इस सेल के अंदर. दिस लाइफ साइकिल यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ रे डायग्राम ऑल्सो. HIV एंटर्स द बॉडी. सबसे पहले जब HIV एंटर करता है, इट अटैक द मैक्रोफेजेस एंड दिस मैक्रोफेज एक्ट एज अ HIV फैक्ट्री. ये आपको क्लियर कर दिया है किस तरह से बहुत सारे वायरसेस बनते जा रहे हैं. पॉइंट नंबर 2, RNA replicates in the presence of reverse transcriptase to form viral DNA. Reverse transcriptase काम करेगा, RNA of virus changes into DNA. Now this DNA, point number 3, incorporates into the host DNA. Host DNA के अंदर जाकर अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देगा. फोर्थ पॉइंट, जो इन्फेक्टेड सेल है now will start producing more and more viral particles, and then after coming out from the macrophages, these cells may enter into helper T cells, TH lymphocytes, very important. अब lymphocytes को अटैक करने लगा है. पॉइंट नंबर 6 पर वहाँ ये नंबर ग्रो करेंगे. Again they come out and they attack the other TH cells, point number 7, and the number of T cells decrease. T lymphocytes का नंबर कम होने लगेगा. और अगर T lymphocytes कम होंगे तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी. पॉइंट नंबर 9. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द केमिकल नेचर ऑफ द कोट A. सी, कोट A is written. What is the name of the coat A? It is the protein coat. वायरस का डायग्राम है और उसके आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द एंजाइम B पर देखिए. नेम द एंजाइम B एक्टिंग ऑन X. X इज अ वायरल RNA. कौन सा एंजाइम है जो वायरल RNA को के ऊपर एक्ट कर रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. एंड इट इज फॉर्मिंग C. व्हाट इज C? इट इज द वायरल DNA. क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द नेम ऑफ द होस्ट सेल. इस होस्ट सेल का नाम बताइए. इट इज मैक्रोफेज एनिमल सेल. एंड नेम 2 different cells the new viruses E subsequently attack. Subsequently they attack on macrophages
and T helper cells. So like this, it is a very important question which used to come in the exams. 5 marks का question है ये, okay, and very simple. You can easily attempt this type of question now. What are the effects of AIDS? How it affects our body? Point number 1. During this period, the person suffers from fever, diarrhea and weight loss. Point number 2. Due to deficiency of TH cells, very important point. अब TH cells का नंबर कम हो गया है, इम्यूनिटी बॉडी के अंदर कम हो गई है, तो जिस पर्सन को एड्स है वो पर्सन को और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर अटैक कर सकते हैं बिकॉज इम्यूनिटी बहुत लो हो चुकी है. एनी बैक्टीरिया, एनी वायरस कैन कम एंड अटैक दैट पर्सन. ओके, हाउ कैन वी डायग्नोज द डिजीज? There is a test called ELISA test. The full form of ELISA is Enzyme Linked Immune Sorbent Assay. You have to remember the name. That's all. What is the treatment for the disease? Antiviral drugs are given, but they are very partially effective, not very effective, but you can prolong the life of the patient. Definitely life उसकी बढ़ सकती है patient की, बट उसको कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता. प्रिवेंशन ऑफ एड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको इन अवर कंट्री एंड NGOs आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल. सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, एंड नाको एंड NGOs आर डूइंग अ लॉट फॉर दिस. ऑल्सो WHO has started many programs to prevent spreading of HIV. So don't die of ignorance. Don't die of ignorance. कि आपको पता नहीं है इसलिए आपको एड्स हो गया और आप मर गए. No, very bad. Don't die of ignorance. So education is must. What should we do? First, making blood banks safe from HIV. जितने भी ब्लड बैंक्स में ब्लड होता है उस पर ये लिखा होना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ HIV नेगेटिव ब्लड. इट शुड बी टेस्टेड बिफोर गिविंग टू द पेशेंट्स. सो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड एंड द ब्लड शुड बी चेक्ड. इट शुड बी HIV नेगेटिव. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? वी शुड यूज डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंजेस इन द हॉस्पिटल एंड इन क्लिनिक्स फॉर गिविंग इंजेक्शंस. यूज एंड थ्रो निडल्स को यूज करना चाहिए, डिस्पोजेबल होना चाहिए, स्टरलाइज्ड होना चाहिए. ओके, देन से नो टू ड्रग्स. वी शुड कंट्रोल ड्रग एब्यूज. वाई? बिकॉज जो ड्रग एडिक्ट होते हैं दे यूज टू टेक द ड्रग्स थ्रू द इंजेक्शंस, और अगर किसी एड्स पर्सन का इंजेक्शन कोई दूसरा पर्सन यूज कर लेगा, सेम निडल अगर वो यूज कर लेगा, तो फ्लूइड जो है इजीली ट्रांसफर हो गया फ्रॉम सिक पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, एंड द अदर पर्सन विल ऑल्सो गेट द एड्स जर्म्स, HIV वायरस. So say no to drugs. Then advocating safe sex by free distribution of condoms, because this is one of the reason of HIV infection. Promoting regular checkups for HIV in susceptible population. जहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ की population बहुत ज़्यादा susceptible है, बहुत ज़्यादा chances है यहाँ पर HIV के होने के, तो वहाँ पर रेगुलर चेकअप होना भी बहुत ज़रूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इन केस ऑफ एड्स. कम टू द कैंसर. आई थिंक यू नो दीज टू पर्सन्स, सोनाली बिंद्रे एंड ऋषि कपूर. ऋषि कपूर इज नो मोर विद अस. सोनाली बिंद्रे इज फाइटिंग विद द कैंसर. What is cancer? Cancer is an abnormal and uncontrolled multiplication of cells. As you know that cell multiply, but they multiply in a controlled manner. But अगर उनका जो multiplication है uncontrolled हो जाए, abnormal हो जाए, then tumors are formed, mass of cells are formed.
These are called as tumors. Why in normal cases the cells they do not multiply abnormally? Because of the presence of contact inhibition property. सभी नॉर्मल सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की. जब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं तो दूसरे सेल को वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से रोकते हैं. Contact with the other cell inhibit their uncontrolled growth. But cancer do not have this property. Cancer cells they do not have this property. ये खो चुके होते हैं प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की और वो अनकंट्रोल्ड वे में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. Tumors. What are tumors? Let us see them again. In our body, cell growth is highly controlled ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. सेल ग्रोथ बहुत ही कंट्रोल वे में चलती है क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी है. लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी लूज हो जाती है. दे लॉस्ट द प्रॉपर्टी एंड कैंसर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म द ट्यूमर्स. ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. बेनाइन ट्यूमर्स ये वो ट्यूमर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर कन्फाइंड रहते हैं. दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दे कॉज वेरी लिटिल डैमेज. सी द डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम देखिए. सारे सेल्स, बहुत सारे सेल्स बन चुके हैं, ट्यूमर बन चुका है, बट दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर. दे आर प्रेजेंट, दे आर कन्फाइंड टू वन प्लेस ओनली. दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड एज बेनाइन ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं? मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स. बहुत सारे ग्रुप हैं सेल्स का जो ग्रो कर रहे हैं. नियोप्लास्टिक सेल्स भी कहते हैं इनको और ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं. दैट ग्रो रैपिडली, प्रोलिफरेटिंग सेल्स दैट ग्रो रैपिडली. दे इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज. जो अपने आसपास के जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स. और जब इनकी ग्रोथ होती है, डिवाइड करते हैं, तो बाकी जो नॉर्मल सेल्स हैं दे स्टार्व, दे डू नॉट गेट द न्यूट्रिएंट्स. देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द फूड, बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स. दोनों टाइप के सेल्स के अंदर, नॉर्मल सेल्स में भी और प्रोलिफरेटिंग सेल्स, दोनों आपस में सेम न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करते हैं. एंड सेल्स स्लॉड फ्रॉम द ट्यूमर. कई बार क्या होता है, कुछ सेल्स ट्यूमर में से निकलकर दूसरी साइड पर चले जाते हैं थ्रू ब्लड एंड दे फॉर्म ट्यूमर एट द अदर प्लेस. दिस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस. वेरी डेंजरस स्टेज ऑफ कैंसर. एक जगह से जहां पर ट्यूमर था वहां से सेल्स निकलकर दूसरी जगह चले गए और वहां जाकर ट्यूमर कर दिया. सो द कैंसर इज स्प्रेडिंग इन द बॉडी. दिस इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस. यू कैन सी द डायग्राम. मैलिग्नेंट कैंसर का राइट हैंड साइड पर देखिए. सेल्स जो हैं कैंसर सेल्स हैं, दे इन्वेड नेबरिंग टिश्यूज एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम. नाउ मेटास्टेटिक कैंसर. Sonali Bindre is fighting with this type of cancer. I will read it out in front of you. This is also known as a high grade cancer and it spreads to every body part from primary tumor. मेन ट्यूमर जो पहला ट्यूमर था वहाँ से सारे बॉडी के पार्ट्स में ये फैल जाता है. Why this happens? When cancer cells break away from the tumor and travel to other parts of the body through blood or through lymphatic system. अगर वहाँ से निकलकर सेल्स लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से या ब्लड की हेल्प से दूसरे पार्ट्स में चले जाएं तो वो फैल जाता है कैंसर. दिस टाइप ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज मेटास्टेटिक कैंसर. वेरी हाईली डेंजरस कैंसर, हाई ग्रेड कैंसर. ऋषि कपूर, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया. इट्स अ ब्लड कैंसर. इसमें वाइट ब्लड सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर. ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट सेल्स होते हैं, बट वाइट ब्लड सेल्स का एनॉर्मसली नंबर बढ़ने लगता है. Those white blood cells crowd out the red blood cells and platelets that your body needs to be healthy. और
ये ओवरक्राउड कर जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट्स को ग्रो करने से रोक देते हैं, इतने ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं. बट दीज एक्स्ट्रा वाइट ब्लड सेल्स आर नॉट गुड, दे डू नॉट वर्क राइट, rather they are harmful. They start damaging our own body tissues and body cells. अपने ही बॉडी के सेल्स को, अपने ही बॉडी के टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं. सो इट इज़ अगेन अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया. इरफान खान, he was suffering from neuroendocrine tumor. It is a very rare cancer, very rare and very difficult to diagnose, and also it is slow growing and complex. What are actually the neuroendocrine cells? And neuroendocrine cells are found all over the body. हमारी पेंक्रियाज, स्टमक, एड्रिनल ग्लैंड, लंग्स, थायराइड, सब में ये न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. और जो नर्वस सिस्टम जब सिग्नल देता है तो ये जो सेल्स हैं दे स्टार्ट रिलीजिंग हॉर्मोन्स, corresponding hormones, or if there is a tumor in these cells then the body functioning will be affected. The same thing happened to Irfan Khan. NET, the neuroendocrine tumor, very rare tumor. What are the causes of cancer? First, physical agents. अगर हमारी बॉडी का एक्सपोजर रेगुलरली आयोनाइजिंग रेडिएशन से हो, एक्स रेज, गामा रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से हो लाइक यूवी रेज, देन आवर सेल्स आर अफेक्टेड, दे स्टार्ट फंक्शनिंग एबनॉर्मली, डिवीजन एबनॉर्मली. सो इसलिए बोलते हैं कि बॉडी का एक्सरे बहुत बार नहीं कराना चाहिए. वी शुड नॉट एक्सपोज आवर बॉडी टू एक्स रेज एंड टू अल्ट्रावायलेट रेज एंड टू गामा रेज. दे कॉज कैंसर इन आवर बॉडी, दे इरिटेट आवर सेल्स. कुछ केमिकल एजेंट्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं. द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस. कौन से केमिकल्स हैं? टोबैको स्मोकिंग, मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर. विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, these are the chemicals which may cause cancer. They are the carcinogens. Cancer causing agents are called as carcinogens. So we should not chew tobacco. We should not chew chewing gum. They may irritate our cells. They may irritate the cells of the mouth and may cause mouth cancer. थर्ड कॉज है बायोलॉजिकल एजेंट. कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हैं जो कैंसर कॉज करते हैं. लेट अस सी इन द अदर स्लाइड. बायोलॉजिकल एजेंट्स. 1, कैंसर कॉजिंग वायरस. देयर आर सम वायरसेस विच आर कैंसर कॉजिंग. उनको कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस बिकॉज दे हैव गॉट वायरल ऑन्कोजीन्स. उनके पास जीन्स हैं ऐसे जो कैंसर कॉज कर सकते हैं. सेकेंड, हमारी बॉडी में कुछ जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें कुछ जीन्स होते हैं, स्पेशल जीन्स. दे आर कॉल्ड एज सेलुलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स और सी ऑन्क. बट when these genes get activated, C-onc get activated under some condition, अगर किसी भी कारण से C-onc एक्टिवेट हो जाए तो this will lead to the oncogenic transformation of cells. Immediately cells ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कैंसरस में. ये ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जीन्स हमारे सेल्स के अंदर. इज इट क्लियर? सो दीज आर बायोलॉजिकल एजेंट विच आर कॉजिंग कैंसर. How can we detect and diagnose the cancer? Detection. We can detect the cancer by biopsy, imaging techniques, use of antibodies, molecular biology techniques, etc. Let us see them. Biopsy. What we do in biopsy? A thin piece of suspected tissue is stained and examined under microscope. जहाँ पर भी ट्यूमर है वहाँ से थोड़ा सा पीस लेकर उसको स्टेन करके स्टडी किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी किया जाता है एंड उसको ट्राई किया जाता है, पता करने का देखा जाता है कि वो उसमें जो सेल्स हैं वो नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं. आर दे ग्रोइंग नॉर्मली, आर दे ग्रोइंग एबनॉर्मली, क्या उनके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आया है.
In case of leukemia, biopsy and histopathological studies, blood and bone marrow test for increased cell count. बोन मैरो का टेस्ट किया जाता है, ब्लड का टेस्ट किया जाता है टू चेक द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, सेल काउंट्स को चेक करना है. सो बायोप्सी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी इसमें किया जाता है. इमेजिंग टेक्निक, इमेजेस ले लीजिए ऑर्गन्स की. क्या क्या तरीकों से इमेज ले सकते हैं? पहला, रेडियोग्राफी, यूज एक्सरेज. फर्स्ट डायग्राम में देखिए, चेस्ट का एक्सरे लिया गया है टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनीथिंग रॉन्ग और एनी ट्यूमर डेवलपिंग इन द एरिया. सेकेंड, CT scan. It is also called as computerized tomography. In this, we use X-ray to generate a 3D image of the internals of an object. 3D-3-dimensional image लिया जाता है with the help of CT scan. Internal organs का डायग्राम में देखिए, CT scan मशीन है and we are getting the film, we are getting the X-rays. Third, MRI, magnetic resonance imaging. In this case, we use magnetic fields and non-ionizing radiation. इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू. क्या कोई लिविंग टिश्यू में कोई चेंज आया है, पैथोलॉजी में चेंज आया है, फिजियोलॉजी में कोई चेंज आया है उसके. तो इमेजिंग टेक्निक्स हैं बाय विच वी कैन डिटेक्ट द कैंसर. यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस. अगर कोई एंटीजन बॉडी में एंटर कर गया है और वो हमको कैंसर, हो सकता है वो कैंसर कॉज कर रहा हो, तो वी यूज एंटीबॉडीज टू चेक इट. एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक टू डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स. इसमें जीन्स को डिटेक्ट किया जाता है कि क्या कोई जीन्स बॉडी के अंदर हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो ऐसे इंडिविजुअल्स को कार्सिनोजेंस लेना अवॉइड करना चाहिए. They should not take tobacco, they should not take any chemicals, or they should not be exposed to many radiations because they have got the genes for the cancer. Treatment. There are 4 different ways by which the treatment of the cancer is done. First is radiotherapy. इसमें ट्यूमर सेल्स को इरेडिएट किया जाता है लीथली बाय रेज विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू. आसपास के टिश्यू को कोई डैमेज नहीं होगा, ओनली ट्यूमर के सेल्स को बर्न किया जाता है बाय यूजिंग रेज. सेकेंड है कीमोथेरेपी. इसमें ड्रग्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दिया जाता है, बट इन ड्रग्स के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, लाइक इट में कॉज हेयर लॉस, एनीमिया एक्सेट्रा. थर्ड इज इम्यूनोथेरेपी, जिसमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाता है ताकि हम ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें. और वो कैसे किया जाता है? द पेशेंट्स आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स. फॉर एग्जाम्पल अल्फा इंटरफेरॉन्स आर गिवन. अल्फा इंटरफेरॉन देने से बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने लगता है, बेटर होने लगता है, और द पर्सन कैन फाइट विद द ट्यूमर. एंड द फोर्थ इज सर्जरी. जिस भी पार्ट में ट्यूमर हो गया है उसको निकाल दीजिए, सर्जरिकली निकाल दीजिए उसको बाहर. बट इनमें से चारों में से कोई एक सिंगल मेथड बिल्कुल परफेक्टली हम नहीं बोल सकते कि ओनली वन सिंगल मेथड से कोई काम चल सकता है कैंसर ट्रीटमेंट में. मिक्सचर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर गिवन टू द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द कैंसर. सो that's all about the AIDS and the cancer. I hope you must have enjoyed it as it is related with your normal life. Do the test which is given in the form of MCQs in the box. Thank you for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my next video. Thank you.